Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper 2nd of BA Part 2nd, Indian Government and Politics. Today we will discuss about the High Court. So let's start. The High Court is at the apex of the judicial administration of the state, and according to the constitution there shall be a High Court for each state of the Indian Union, but the Indian Parliament is empowered to establish a common High Court for two or more states and to extend its jurisdiction of a High Court to a Union territory. And Parliament can also reduce the area of jurisdiction of a High Court. And here comes the composition. The Chief Justice and the other judges comprise a High Court. The number of judges of a High Court is fixed by the President from time to time, and every judge of a High Court shall be appointed by the President, and after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and in case of the appointment of a judge other than the Chief Justice of the concerned High Court. Next one is qualifications. A person shall be qualified for appointment as a judge of the High Court if he is a citizen of India or has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India, and has for at least 10 years been an advocate of a High Court or of two or more such courts in succession. Next one is removal of judges. A judge of the High Court shall hold office and until he attains the age of 62 years. A judge may resign from his office by writing under his hand to the President of India, and he can also be removed by the President of India on the ground of proved misbehavior or inefficiency if a resolution to that effect is passed by both the houses of the Parliament by a 2/3 majority of the members present and voting, and supported by a majority of the total membership of each house. Next one is powers and functions. So let's see what are the powers and functions of the High Court. So first one is the High Court of a state together with the Supreme Court has original jurisdiction as regards the enforcement of fundamental rights, and second one is the High Court is the highest court of appeal in the state in both civil and criminal matters, and third one is the High Court is empowered to call for the records of any court to satisfy itself about the correctness of the legality of the orders passed. And next one is the High Court acts as a court of record. Its decisions are binding upon the lower courts within its jurisdiction. It has the power to punish for the contempt of itself. And last one is transfer of cases to High Court. The High Court may withdraw a case from a lower court if it is satisfied that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution, the determination of which is necessary for the disposal of the case. Then High Court can, after delivering judgment, send back the case to the court of hearing, which proceeds on the lines of the judgment of the court. आज हम लोग बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की। जो उच्च न्यायालय है ये एक राज्य में जो न्यायिक प्रशासन है उसमें अपेक्स कोर्ट होता है ये, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास में ये पावर है कि वे चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए प्लस किसी यूनियन टेरिटरी तक उसका जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ तक उसका जो क्राइटेरिया है, अधिकार क्षेत्र है, उसे विस्तृत कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए इस तरीके से एक ही हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट वो बना सकती है।
जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्य के उस राज्य के राज्यपाल, और यदि चीफ जस्टिस के अतिरिक्त अन्य जजेस की वहाँ पर अपॉइंट किया जाना है उनको, तो वो चीफ जस्टिस की भी सलाह लेते हैं। क्वालिफिकेशंस आ जाती है, एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कम से कम 10 साल तक 10 वर्ष तक कोई ना कोई भारतीय जो राज्य भारत का क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई ना कोई न्यायिक अधिकारी रहे हों, या एटलीस्ट 10 इयर्स तक आपने किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक हाई कोर्ट में कंसेक्यूटिवली एडवोकेट के रूप में वहाँ पर आपने काम किया हो। नेक्स्ट वन आ जाता है रिमूवल ऑफ द जजेस आ जाता है। जजेस को अपने जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपने पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो जो एक न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त वो खुद भी अपने पद से रिज़ाइन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अपना हैंड रिटन रेजिग्नेशन के द्वारा, और उन्हें अपने पद से भी हटाया जा सकता है। प्रूव्ड सिद्ध मिस बिहेवियर, दैट इज़ यदि इस तरीके का आपका व्यवहार सिद्ध हो जाता है मिसबिहेवियर, तो आपको जो पार्लियामेंट है वो आपके दोनों हाउस अपनी 2/3 मेजोरिटी से, एंड विच शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, इस तरीके से वो अपने पद से आपको अपने पद से हटा सकते हैं यहाँ जो न्यायाधीश है उनको। इसके बाद में उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ आ जाती हैं। पहला आ जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने के संबंध में या इनके उल्लंघन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उन मामलों में उच्च न्यायालय को भी शक्ति प्राप्त है। सेकंड आ जाता है जो उच्च न्यायालय है ये अपने से नीचे वाले कोर्ट के लिए एक राज्य के अंतर्गत हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ होता है कि जो भी दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं जिनके अंतर्गत निम्न न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उनके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। रिवराइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी कोर्ट का जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास में मंगाकर उसकी लीगैलिटी है कि वो सही ढंग से उन्होंने अपने कानून के दायरे के अंतर्गत रहकर कार्य किया है या नहीं किया है, वो बुलाकर उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं ये अपने से निम्न न्यायालयों के लिए एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करते हैं, अभिलेख न्यायालय का कार्य करते हैं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह होता है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके निर्णय जो उनसे निम्न जितने न्यायालय हैं उनके ऊपर ये बाध्यकारी रहेंगे, और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये भी अधिकार है कि वे अपने अपमान के लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी उसके लिए काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस टू हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वह निम्न न्यायालय से किसी भी केस को अपने पास में मंगा सकती है, मंगाकर उसे देख सकती है। यदि उच्च न्यायालय को ये लगता है कि इसके अंतर्गत विधि सम्मत विधिया इस तरीके का कोई भी प्रश्न अराइज हुआ है, कानून का कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है, या जो कि उसे यह लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसकी बजाय उसे मंगाकर अपने पास में देखना चाहिए, तो वो इस तरीके से उसे देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।